بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، نہ حق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں۔ علاج کیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوف زدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی۔ جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے۔ تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈز اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سیکھتا سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا، پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے اعیذکما
बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। आपने यही कलिमात पढ़ के दम किए। फकाम यलअबान, दोनों उठे और खेलने लग गए। अपने बच्चों को भी अल्लाह की जमानत में दीजिए, अल्लाह की पनाह में दीजिए। और साथ जिब्रील ने कहा कि आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल और इसहाक को यही दम किया करते थे। सातवां तरीका, अगर आपको घबराहट महसूस हो रही हो, बेचैनी हो, खौफ हो, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आप फौरन अपनी जुबान पे ये कलिमात लाइए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। ये कलिमात पढ़ने से रब तआला बेचैनी भी खत्म करते हैं, खौफ भी खत्म करते हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जमानत में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनो या गधे के बोलने की आवाज सुनो, फौरन कह दिया करो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये उस वक्त ही आवाजें निकालते हैं जब ये शैतान को देखते हैं, ताकि तुम शैतान के तसल्लुत से बच जाओ। वमन सल्लल फज्र फी जमाअ फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह। और अगला तरीका जिससे आप रब की जमानत में जा सकते हैं, सुबह की नमाज बाजमात अदा कीजिए। वो अल्लाह की जमानत में चला जाता है, अल्लाह की अमानत में होता है जो सुबह की नमाज बाजमात अदा करता है। अगर आपको ख्वाब आया है तो याद रखिए, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। और अगर बुरा ख्वाब आए तो 3 काम कीजिए। पहला काम, उठकर बाएं तरफ अपने चेहरे को करके 3 मरतबा थूक दीजिए और ये पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तीसरा काम, सदका कर दीजिए, आपको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल महफूज फरमाएंगे। और ये ख्वाब किसी को मत बताइए, इल्ला अला आलिमिन औ नासिहिन, या किसी आलिम को बताइए या उसको जो आपको शरीयत की रोशनी में नसीहत कर सकता है। किसी ऐसे इंसान को बताएंगे, वो आपके ख्वाब सुन के खुश भी हो सकता है कि बहुत अच्छा हुआ आपको खौफजदा ख्वाब आए। नहीं, शरीयत की रोशनी में आप इसका हल तलाश करने के लिए किसी आलिम को बताइए, किसी नासिह को बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो ये दुआ पढ़ लेता है, 24 घंटे अल्लाह की अमानत, जमानत और पनाह में चला जाता है। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबि वश्शहादा रब्ब कुल्ली शैइन व मलीका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिरकी। ये अल्फाज जो पढ़ लेता है, ताला 24 घंटे उसकी शैतान से हिफाजत फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से बचने का अगला तरीका जो बयान किया है, रात के वक्त और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए। मन क़रअ आयतुल कुर्सी दुबुर कुल्ली सलातिन मकतूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्ला अन यमूत। जो आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ लेता है, उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा हाइल है। जिस दिन फौत होगा वो जन्नती मेहमान होगा। और जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, जो रात को पढ़ ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के प्यारे पैगंबर ने कितनी खूबसूरत बात कह दी, लन यज़ाल अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़ वला यक़रबुका शैतानुन हत्ता तुस्बिह। रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सुबह तक शैतान आपके करीब नहीं आएगा, बल्कि रब तआला की तरफ से आपके लिए एक मुहाफिज, एक निगरानी करने वाला फरिश्ता उतार दिया जाएगा। आप अपने घर में सूरतुल बकरा पढ़िए, बल्कि अगर रात को सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले तो हदीस में आता है फी लैलतिन कफता, अगर कोई रात को ये 2 आयतें पढ़ लेता है, सारी रात शैतान से अल्लाह ताला उसे काफी हो जाते हैं, उसके करीब नहीं आने देते। अपने घर में सूरतुल बकरा पढ़िए। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, ला यदखुलहु शैतानु अबदा, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता।
فإن أخذها بركة, सूरत अल-बकरा को पढ़ना बहुत बड़ी बरकत का बाइस है. वतरकहा हसरा, और इसको छोड़ देना हसरत व नदामत इंसान को मिलती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद आखिरी 2 सूरतें पढ़िए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास. इन 2 सूरतों को पढ़ने से कभी आप पे जादू नहीं होगा, कभी जिन्नात का हमला नहीं होगा. अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़रा अल-मुअव्वज़तैन बअद कुल्ली सलाह. अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हर नमाज के बाद इन 2 सूरतों को पढ़ा जाए. बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन के अंदर 100 मरतबा ये पढ़ लेता है, क्या चीज? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. इतने कलिमात जो पढ़ लेता है 100 मरतबा, रब ताला उसे 10 गर्दनें आजाद करने का अजर देते हैं, और उसके लिए नेकियां भी लिखी जाती हैं, बुराइयां भी उसकी मुआफ की जाती हैं. और सबसे बड़ा इनाम, वकान लहू हिर्ज़न मिनश्शैतान यौमिही ज़ालिका हत्ता युमसी. सारा दिन अल्लाह ताला उसे शैतान के शिकंजों से महफूज फरमा देते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मौसीकी और उसके आलात से दूर रहो, इससे भी शैतान जो है आपको डिट्रैक्ट कर सकता है. बल्कि फरमाया, मैं तो आया ही इनको तोड़ने के लिए हूं. और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते, अल-गिना युंबितु निफाक, गाना मौसीकी इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है. बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान से कैसे बच सकते हो? खाओ तो दाएं हाथ से, पियो तो दाएं हाथ से, कुछ चीज लो तो दाएं हाथ से, कुछ दो तो दाएं हाथ से. क्यों? फ़इन्न शैतान यअकुलु बिशिमाली व यशरबु बिशिमाली व यअखुज़ु बिशिमाली. शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से कुछ चीज लेता और देता है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाओ. क़ाल ला अस्तती', मैं नहीं खा सकता. फरमाया ला इस्तताअत, आप नहीं खा सकते. फमा रफ़अहा बअद ज़ालिका इला फी, उसने जब बात नहीं मानी, अल्लाह ताला ने दायां हाथ उसका शल कर दिया, दोबारा मुंह तक ले जा ही नहीं सका. इसलिए आप ये तरगीब दिया करते थे, ताकीद किया करते थे. छोटा बच्चा सिहाबी बयान करते हैं कि मेरा हाथ इधर उधर जाता बर्तन में, आपने मुझे 4 अदब सिखाए. उद्नु या गुलाम, बेटा खाने के करीब होके बैठा करो. कुल बिस्मिल्लाह, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो. कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाया करो. कुल बिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो. किसी के सामने हाथ ले जाना ये अदब अच्छा नहीं है. 4 अदब ऐसे सिखाए. सिहाबी कहते हैं मेरी सारी जिंदगी गुजरी, फमा ज़ालत तिल्का तुअमती बअद, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैंने आज तक ये आदाब छोड़े नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मिलजुल के खाना खाया करो, इकट्ठे बैठ के खाना खाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो. शैतान से भी बचाए जाओगे और अल्लाह जुल जलाल उस खाने में बरकत भी अता फरमा देंगे. फजूल खर्ची से बचिए. शैतान के शिकंजे में उस वक्त भी इंसान आता है जब फजूल खर्ची करता है. फरमाया इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, ये फजूल खर्च शैतान के भाई हैं. आपने फरमाया अगर शैतान से बचना है तो अजनबी औरत के साथ तिन्हाई इख्तियार करने से रुक जाओ. फरमाया ला तुसाफिरुल मरअह इल्ला मअ ज़ी महरम, कोई औरत बगैर महरम के सफर न करे. बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला यख्लुवन्न रजुलन बिम्रअतिन लैसा मअहा ज़ू महरम मिनहा फ़इन्न सालिसहुमा अश-शैतान, जो महरम नहीं उसके साथ खलवत इख्तियार करेंगे तो तीसरा शैतान होता है. जिसका अल्लाह पर ईमान है, जिसका आखिरत पर ईमान है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वगरना वो शैतान के शिकंजे में आ जाएगा. बेदारी जब हो, आप सोकर उठे हैं तो वुजू कीजिए और अपने नोज को 3 मरतबा झाड़िए. फ़इन्न शैतान यबीतु अला खयाशिमी, क्योंकि शैतान इंसान के ब्रिज ऑफ नोज,
नाक के बांसे में आराम करता है, इसलिए अपने नोज को 3 मरतबा झाड़िए, शैतान से दूर हो जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली देने से बचिए, इससे आप शैतान से बच सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, तुम शैतान को भी गाली न दिया करो, ला तसब्बु शैतान, शैतान को भी गाली न दो, इससे भी शैतान खुश होता है, अल्लाह खुश नहीं होते। अगर शैतान को गाली देना जायज नहीं, जिस जैसा कोई नाफरमान है ही नहीं, तो फिर किसी मुसलमान को गाली देना कैसे जायज? आप किसी को गाली न दें। सहाबी कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने इतना कहा था, ला तसुब्बन्न अहदा, मेरे सहाबी किसी को गाली न देना। मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने आज तक कभी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। यहया बिन मईन, जब उनको एक शख्स ने गाली दी तो उन्होंने मुस्करा के खामोशी इख्तियार कर ली। पास बैठा इंसान कहता है, लिमा लम तरुद्द अलैहि, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या आप बुज़दिल हैं? तो उन्होंने मुस्करा के कहा था, फलिमाज़ा तअल्लमतु इज़न, अगर मैंने गाली का जवाब गाली से देना है तो फिर मैंने इल्म क्यों पढ़ा, मैंने फिर दीन क्यों सीखा? इल्म पढ़ने के बाद गालियां नहीं देते। और आखिरी बात, दुआ किया करें, रब ताला मुझे और आपको शैतान के शिकंजों से महफूज फरमाए। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, वक़्सी शैतानी, और शैतान को मुझसे दूर कर दे, वफ़ुक्क रिहानी, और मुझे आजादी दिला दे, वजअलनी फिन्नदिय्यिल अअला, और क़यामत के दिन मुझे बुलंद दर्जों पर फाइज फरमा। रब ताला से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल मुझे और आपको शैतान के हर शिकंजे से आजाद फरमाए, और इन आदाब को, इन अज़कार को, इन दुआओं को याद करके अपने आप को अल्लाह की जमानत और अमानत में और अल्लाह की पनाह में ले जाने की तौफीक अता फरमाए। और जितने यहाँ बैठे हैं, रब ताला इन्हें अपने मुकर्रब लोगों की सब में शामिल फरमाए। मैं बहुत दुआगो हूँ अपने मुहतरम और मुकर्रम भाई डॉक्टर नवीद साहिब और उनके रुफका के लिए कि अल्लाह ज़ुल जलाल इनको करोड़ा रहमतों से नवाजे, और जुमला इंतजामिया को अल्लाह ज़ुल जलाल खुशियों से नवाजे। जिस तरह आज हम दीन की ये बात सुनने के लिए जमा हैं, रब ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए और अपने महबूब के रिफाकत नसीब फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।